خبرنامے میں خوش آمدید۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے صدر میں بم دھماکہ کرنے والے دہشت گرد کو را نے فنڈنگ کی۔ ایران سے کالعدم SRA کا رہنما ہدایات دیتا رہا۔ DIG CTD سید خرم علی نے ایسا انکشاف کیا ہے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ واقعے میں ایرانی حکومت ملوث نہیں، لیکن ایرانی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ ہلاک دہشت گرد الادینو کو 2 لاکھ روپے مل چکے تھے۔ ابھی تک جو ہمیں اس کی ہائیڈ آؤٹ پتہ لگی ہے کہ یہ گزری کے علاقے میں یہ رہ رہا تھا، اس کے ساتھ ہی جو اس کا اکمپلس تھا نواب، ان دونوں نے مل کے یہ سارا انسیڈنٹ کیا۔ انسٹرکشنز لے رہا ہے ایران سے، جو ان کا ہے اپنا ہیڈ ہے ساری SRA کی ایکٹیویٹی کا، اصغر شاہ، وہ اس کو وہاں سے انسٹرکشنز دے رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، اس پہ اس سارا انسیڈنٹ جو ہے وہ انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا۔ ابھی تک ہمارے پاس جو منی ٹریل آئی ہے وہ تقریباً 2.25 لاکھ روپے کی ہے، کہ 2.25 لاکھ روپے اس کو ملا ہے باہر سے ڈفرینٹ سورسز سے۔ جو منی ٹریل جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس میں انڈین انوالومنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی تو پیسوں کے حوالے سے ہی آ رہی ہے، ٹریننگ میں بھی ہے، لیکن جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اور جو ہمارے پاس ہے، لیکن اب ہم اس کی ٹیرر فنانسنگ والی پوری ٹریل نکال کے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہمارا اپنا خیال یہ ہے، جو ہمارے پاس ابھی تک شواہد آ رہے ہیں، کہ الٹیمیٹلی پیسے جو ہیں وہ را کی طرف سے ہی آ رہے ہیں۔ ایران کی گورنمنٹ کی انوالومنٹ بالکل بھی سامنے نہیں آ رہی، یہ میرا خیال ہے ایرانی سوائل یوز ہو رہی ہے۔ پشاور میں فائرنگ سے SHO تھانہ شاہپور شہید ہو گئے۔ شکیل خان ڈیوٹی پر جاتے ہوئے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اینی شاہد نے ہما کو بتایا ہے کہ اس حوالے سے مزید کیا گفتگو کی ہے، جانتے ہیں سجاد حیدر سے۔ سجاد بتائیے۔ بالکل، ہم اس ٹائم یہاں پر ناردرن بائی پاس کے اس جگہ پر موجود ہے، جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل جو ہے SHO تھانہ شاہپور کو جو ہے یہاں پر ٹارگٹ کر کے جو ہے شہید کیا گیا ہے۔ اینی شاہد سے ہماری بات ہوئی ہے تو اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ یہاں سے رکشے میں جو ہے گزر رہا تھا، تو ایک گاڑی پیچھے سے آئی جس نے جلدی میں اس رکشے کو ٹکر ماری اور آگے جا کے رکی، اور SHO کی جو گاڑی تھی وہ یہاں پر سے گزر رہے تھے، ان کو جو ہے فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ 2 لوگ تھے جو گاڑی سے اترے، انہوں نے جو ہے 9mm پسٹل اور کلاشنکوف کا جو ہے استعمال کیا اور گاڑی کو جو ہے فائرنگ کی، جس میں جو ہے SHO موجود تھے اور وہ جو ہے موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ واقعے کے بعد جو ہے CCPO اور SSP نے اسپاٹ کا جو ہے دورہ بھی کیا ہے۔ ان کی جانب سے جو ہے واقعے کو دہشت گردی کا واقعہ کرایا جا رہا ہے، کیونکہ پشاور میں کچھ روز سے جو ہے ایسے واقعات جو شروع ہیں جس میں جو ہے پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس میں پولیس کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ CCPO اور SSP کا یہی کہنا تھا کہ واقعے کے متعلق جو ہے CTD کو جو ہے مراسلہ لکھا جائے گا، جس کے بعد جو ہے واقعے کی FIR درج کی جائے گی۔ 2 روز قبل بھی پشاور میں ایک واقعہ آیا تھا جس میں سول حساس ادارے کے اہلکار کو جو ہے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں جو ہے ایک اہلکار شہید ہوا تھا جبکہ دوسرا جو ہے اس میں زخمی ہوا تھا۔ تو CCPO کا یہی کہنا ہے کہ واقعے کی تمام پہلوؤں سے جو ہے تحقیقات جو ہے شروع کر دی گئی ہے، اور ملزمان کی تلاش کے لیے جو ہے علاقے میں سرچ آپریشن بھی آس پاس کے علاقے میں کیا جا رہا ہے۔ سجاد حیدر، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ لاہور کے علاقے چنگی امر سدھو میں رکشے پر فائرنگ سے 2 خواتین اور بچہ زخمی ہو گئے۔ تفصیل جانتے ہیں، جہانگیر خان ہمارے ساتھ ہیں۔ جہانگیر، اس واقعے سے متعلق پولیس کا کیا بتانا ہے؟ یہ شبانہ اور شمع نامی 2 بہنیں ہیں اور ایک ان کا بیٹا ہے علی حیدر۔ یہ ماڈل کچہری سے پیشی کے بعد جو ہے وہ واپس جا رہے تھے کہ بینک سٹاپ کے قریب موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کی ہے، جس کی زد میں آ کر یہ 2 خواتین اور بچہ زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان 2 خواتین کے بھائی محسن نے ان پر فائرنگ کی ہے۔ محسن جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے جیل سے رہا ہو کر آیا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اس کا جائیداد کا تنازع چل رہا تھا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ محسن کے ساتھ ایک اس کا ساتھی بھی تھا، جس کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے، جبکہ زخمی خواتین اور بچے کو طبی امداد کے لیے جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جی جہانگیر، تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ۔ انٹر بینک میں بھی ڈالر نے ڈبل سینچری کر لی۔ دوران ٹریڈنگ 1 روپے 61 پیسے مہنگا ہو کر 200 روپے کا ہو گیا ہے۔ اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں رضوان عالم سے۔ رضوان، ڈالر کی اونچی اڑان مسلسل جاری ہے۔ بالکل جاری ہے ڈالر کی اونچی اڑان، نہ صرف یہ کہ بلکہ 11واں روز ہے آج انٹر بینک مارکیٹ اور اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر مہنگا ہو رہا ہے۔ ڈالر نہ صرف مہنگا ہو رہا ہے بلکہ وہ ریاست کی ریٹ کو بھی چیلنج کر رہا ہے، کھلا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے کل جو اقدام لیا، انہیں آکٹا فوریکس اور ایزی فوریکس جیسی جو ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے آف شور، ان کے اوپر پابندی لگا دی۔ بینکوں کو کہا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں اور عوام کو بھی منع کیا کہ ان کے ساتھ ٹریڈنگ نہ کریں، تو اس کا بھی ابھی اب تک کوئی اثر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ IMF سے جو ڈیل ہے اس پہ جو آؤٹ کم آئے گا وہ اگر پازیٹیو آتا ہے اور IMF سے ڈیل ہوتی ہے تو یہ چیز واضح کرے گی کہ پاکستان میں روپے کی قدر جو ہے وہ کہاں پہ جا کے رکے گی۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے مسلسل ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے۔ آج انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر نے جو ہے وہ 200 روپے کی ریکارڈ سطح کو چھو لیا اور انٹر بینک میں
इस वक्त जो है डॉलर जो है 200 रुपए की सतह पे ट्रेड हो रहा है। ओपन करेंसी मार्केट में 205 रुपए की सतह पे जो है वो बुलंद तरीन सतह पे जो है डॉलर फरोख्त हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आलम, अपडेट किया आपने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉलर की बढ़ती कदर का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने मुआशी सूरत हाल पर इजलास बुला लिया है। बात करते हैं उस्मान खान से। उस्मान, इस इजलास के हवाले से अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, डॉलर की बढ़ती कदर और रुपए की बेकदरी ने वफाकी हुकूमत खुसूसन वज़ीर आज़म को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। शहबाज शरीफ ने माशी सूरत हाल पर इजलास बुलाया है। वज़ीर आज़म को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्की बरामदात और दरामदात के हवाले से भी आगाह किया जाएगा और यह भी तवक्को की जा रही है कि रुपये की कदर मुस्तहकम करने के हवाले से अहम फैसले लिए जाएंगे। और चूँकि आज अहम इजलास बुलाया गया, इसी हवाले से पानी के जो मसाइल है उसके ऊपर अलग इजलास बुलाया गया, तो आज रुपए की कदर का जो मामला है उसके ऊपर माशी सूरत हाल पर इजलास में ब्रीफिंग दी जाएगी और अहम फैसले लिए जाएंगे। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया उस्मान। स्टेट बैंक ने ऑफशोर फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग वेबसाइट से डॉलर्स ट्रेडिंग पर पाबंदी लगा दी है। स्टेट बैंक ने डॉलर्स में समेत फॉरेन एक्सचेंज की गैर कानूनी मुंतकली रोकने के लिए अहम इकदाम उठाया है। मरकजी बैंक का कहना है कि ऑफशोर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किसी पेमेंट चैनल से ज़र मुबादला ना भेजा जाए। ऑफशोर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की खदमात और मसनूआत खरीदना ममनू है। बैंक्स ऑफ शोर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए खदमात फराहम ना करें। स्टेट बैंक ने अवाम को खबरदार किया है कि ऑफशोर डिजिटल एप्लीकेशन से ट्रेडिंग ना करें, वरना उनके खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बैंक्स को कहा गया है कि ऑफशोर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अदायगी के हवाले से सहूलत फराहम ना की जाए। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खान की हुकूमत ने कर लिया था, और फिर मैं याद दिलाऊं कि ये कोरोना के बावजूद है, तो वो तमाम लोग, वो तमाम टीवी के एंकर्स, वो तमाम सियासतदान जो बड़ा हमारा मजाक उड़ाते थे कि किधर गई 1 करोड़ नौकरियां, वो 1 करोड़ नौकरियां आपको इमरान खान की हुकूमत इजाफा करके दिखा रही थी। ये जो इस साल 6% इजाफा हुआ है मईशत के अंदर, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि वो तमाम सेक्टर्स के अंदर ये इजाफा हुआ है, उस सबको अगर आप देखें तो मुझे कोई शक नहीं कि इस साल जो है वो एक बड़ी तादाद के अंदर जब भी रोज़गार के नंबर्स रिलीज़ होंगे, रिपोर्ट रिलीज़ होगी, तो आपको नज़र आएगा। और मेरे अंदाजे के मुताबिक हम तकरीबन पहले 4 साल के अंदर 80 लाख इजाफी रोज़गार, यानी 1 करोड़ 5 साल का मतलब हुआ 20 लाख सालाना, हम उस पेस के ऊपर पहुँच चुके थे। और अभी तो पहिया मईशत का तेज़ से तेज़ तर होता चला जा रहा था। ये वो हालात थे जिसके अंदर बैरूनी मुदाखलत, साजिश, बंद कमरों की साजिश और ज़मीर फ़रोख्त करके, ज़मीर ख़रीद कर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ऊपर एक हमला हुआ, और उसकी कीमत जो इस वक्त पाकिस्तान अदा कर रहा है, आपने सुनी लिया होगा, अभी तक तो ख़बरें फैल गई हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज सुबह इंटर बैंक मार्केट के अंदर, ये ओपन मार्केट नहीं है, फॉरेन डीलर वाला, इंटर बैंक मार्केट के अंदर जो हमारी सरकारी जो बैंक्स के अंदर जो ट्रेडिंग होती है 200 से ऊपर पहुंच चुकी थी, और 200 रुपए के ऊपर कोई डॉलर बेचने को तैयार नहीं था। सुबह की सूरत हाल ये थी, एक मार्केट के अंदर जो पैनिक किस्म की सूरत हाल होती है ऐसी नज़र आ रही थी। ये किया है पाकिस्तान के साथ, और जो इसके अवामिल बने हैं उसकी बड़ी तफसील से बात की जा चुकी है। लेकिन ज़रा सा आगे की तरफ देखें कि ये सूरत हाल, मैंने आपको बता दिया कैसे मईशत किस तरीके से तरक्की कर रही थी, किस तरीके से बेहतरी की तरफ गामजन थी, किस तरीके से ज़राअत बढ़ रही थी, सनत बढ़ रही थी, रोज़गार लोगों को मिल रहा था, बरामदात बढ़ रही थी, तरसीलात बढ़ रही थी, तमाम जो बेहतरी हो रही थी उस सब को हिला कर रख दिया, उसकी सारी बुनियादें हिला कर रख दी। मईशत के अंदर पहले भी मैं ये कह चुका हूँ, कारोबारी लोग जो हैं वो समझते हैं, सरमायाकार समझते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो जहर होती है, और गैर यकीनी सूरत हाल जो है उसको हल करने के एक रास्ता वो है जो बेहतरी की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता वो है जिसकी हमें बातें सुनाई देती हैं। बेहतरी का रास्ता ये है इलेक्शन कॉल करें, सारा पाकिस्तान जो है मुतहद है इस कॉल के ऊपर कि हाँ जी जमहूरी तरीक़ेकार पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, जमहूरी अमल चलना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, सब अपने अपने हलकों के अंदर उतर जाएंगे, ना हमें उमर अयूब नज़र आएंगे, या हरीपुर पहुँचे होंगे, अली जैदी कराची बैठे होंगे और वहाँ पर अपने अपने हलकों के अंदर चले जाएंगे। तो ये सारी जो
ایک سیاسی افراتفری، ایک معاشرتی عدم استحکام نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پاکستان کا دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی بہتری کا سفر شروع ہو جائے گا۔ دوسرا راستہ جس کی تجویز دی جا رہی ہے وہ راستہ ہے کہ نہیں جی، ہم جو ہیں وہ بڑی زبردست ہم طاقت استعمال کریں گے اور دیکھتے ہیں کیسے عمران خان نکلتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون باہر آتا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یاد دلا دوں اور یہ غور سے سن لیں، یہ عمران خان کی جد و جہد اکیلے کی نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کے اکیلے کی جد و جہد نہیں ہے، یہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ غلامی نامنظور ہے اس قوم کو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی سے، دھونس سے، تشدد سے، اسلحے کے استعمال سے قوم کے اس فیصلے کو دبا سکتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسی غلط فہمیاں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جس دن بڑے فخر سے بتایا گیا کہ جناب اکبر بگٹی کو ہم نے مار دیا ہے، اور ایسے مارا اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کدھر سے باہر آیا تھا۔ 15 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں، بلوچستان آج بھی سنبھالا نہیں جا رہا۔ یہ باتیں جو ہیں بند کمروں کے اندر بڑی اچھی لگتی ہیں، یہ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں جو ہیں، اور اپنے آپ کو جو حکومت کے اندر ہوتے ہیں، جو طاقت کے جن کے پاس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ اسی قسم کے مشورے ہمیں عمران خان کو بھی دیے جاتے تھے۔ جس وقت نواز شریف نکل رہے تھے، گجرانوالہ کی کال آئی، اس سے پہلے جب فضل الرحمان یہاں آ رہے تھے اسلام آباد میں، تو ان کو بھی ایسے مشورے دیے جاتے تھے، جی جناب نکل لینے دو گھر سے، پہلے سے اٹھا لو۔ ہر دفعہ عمران خان کا یہ جواب ہوتا تھا کہ پریشانی کس بات کی ہے، آنے دو، یہ ان کا آئینی حق ہے اور عوام فیصلہ کر لیں گے۔ اور عوام جو فیصلہ کر بیٹھے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، چاہے آپ حلیم عادل شیخ کے گھر پر رات میں 2 دفعہ چھاپے ڈالیں یا 4 دفعہ چھاپے ڈالیں، یہ لوگ اب گھر بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کے عوام کا، وہ آپ کو سارے پاکستان میں نظر آ رہا ہے۔ کل جس طریقے سے گجرانوالہ باہر نکلا ہوا تھا، میرے خیال میں پاکستان میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، شاید عمران خان نہیں سوچ سکتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر پوری قوم نے کھڑے ہو جانا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ اس وقت کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ تفتیشی اداروں میں مبینہ مداخلت اعلیٰ حکومتی شخصیات کو مہنگی پڑ گئی۔ سپریم کورٹ نے ریکارڈ ٹیمپرنگ، شواہد ضائع ہونے اور پروسیکیوشن پر اثر انداز ہونے کے خدشات پر از خود نوٹس لے لیا۔ اعلامیے کے مطابق احتساب قوانین میں تبدیلی نظام انصاف کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تحقیقاتی اداروں میں مبینہ مداخلت کا نوٹس جسٹس مظاہر علی نقوی کے نوٹ پر لیا۔ سماعت آج دن 1 بجے ہوگی۔ چیف جسٹس خود لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس محمد علی مظہر بھی بینچ میں شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق سرکاری افسران کے تبادلوں اور تحقیقات میں مداخلت سے نظام انصاف میں خلل پڑ سکتا ہے۔ حکومتی مداخلت سے شواہد ضائع اور پراسیکیوشن متاثر ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ احتساب کے قوانین میں تبدیلی نظام انصاف کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ میں اعلیٰ حکومتی شخصیات کی جانب سے تفتیشی اداروں میں مبینہ مداخلت پر از خود نوٹس کی سماعت کچھ دیر میں شروع ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ بات کر لیتے ہیں، شہزاد علی ہمارے ساتھ ہیں۔ شہزاد، یہ بتائیے کہ بینچ میں کون کون شامل ہے؟ جی بالکل سدرا، سپریم کورٹ نے اعلیٰ حکومتی شخصیات کی جانب سے جو تحقیقاتی اداروں میں مداخلت ہے اس پر از خود نوٹس جو ہے وہ گزشتہ رات لیا تھا۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کورٹ نمبر 1 میں دن 1 بجے اس اہم کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں۔ اس اہم کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے گزشتہ رات جو نوٹس لیا تھا اس میں یہ بھی خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ ٹیمپرنگ پروسیکیوشن پر اثر انداز ہونے سے جو ہے وہ ریکارڈ ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہے، اور جو احتساب کے قوانین میں تبدیلی سے جو ہے وہ اور نظام انصاف اور جو فوجداری نظام انصاف ہے اس کو کمزور کرنے اور نیچا دکھانے کے مترادف ہوگا۔ تو اس اہم کیس کی سماعت سب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کرے گا۔ اس حوالے سے یہ بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے، از خود نوٹس کیس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جو حکومتی شخصیات اور جو سینئر افسران کے
के तबादले हैं, इससे जो है वो निज़ाम इंसाफ में जो है वो खलल पड़ सकता है। इससे जो है वो तहकीकात मुतासिर हो सकती है, जिस पर जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के जो एक मोअज़्ज़ज़ जज हैं उनके नोट पर जो है वो गुज़िश्ता रात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर जो है वो खुद नोटिस लिया और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो इस अहम केस की समाअत जो है अब से कुछ देर बाद समाअत होगी। शहजाद अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस से इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा, ये शैतान की आंत साबित होगा, ये मामला फिर रुकेगा नहीं। मोहसिन शाहनवाज रांझा बोले कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, हर इदारे को अपने दायरे कार में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के असकुद नोटिस पर हुकूमत का रद्द अमल। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं तासुर की बुनियाद पर लिया गया सो मोटो सुप्रीम कोर्ट की साख के लिए तबाहकुन होगा। ऐसे तासुर को जायल किया जा सकता है, न इसकी तलाफी की जा सकती है। मेरे मामले में जज को व्हाट्सएप पर तब्दील किया गया, क्या उस पर असकुद नोटिस लिया गया? लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। 22 करोड़ अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके बारे में अगर हम पहले कानून साजी के अमल से पहले कोई ऐसी गुफ्तगू का आगाज करेंगे तो ये पाकिस्तान के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि दस्तूर के मुताबिक हर इदारे का अपना दायरा कार है, एक इदारे को दूसरे इदारे के दायरे में नहीं जाना चाहिए। और तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं पहले भी शरीफ फैमिली ने अपने लोग लगाए थे, अब भी शहबाज शरीफ ने वजीर आजम का हलफ लेने से पहले टीम बदल दी। सुप्रीम कोर्ट का जो एक्शन है वो हिस्टोरिक है, एक तारीखी फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जब शहबाज शरीफ का जो केस है अभी उन्होंने हलफ नहीं दिया था और डॉक्टर रिजवान को और पूरी टीम को बदल दिया गया। अब जब आपने पूरी टीम को बदल दिया और उनको किसी को बलूचिस्तान किसी को जीबी भिजवा दिया तो उसके बाद उस केस की इन्वेस्टिगेशन कमजोर हो गई। फिर अपने लोग लगा के ये रिकॉर्ड में रद्द बदल जो है इन्होंने किया। जरदारी की केस में तो रिकॉर्डिंग गायब हो गया। शहबाज शरीफ के केस में जो मुबैना तौर के ऊपर लॉ मिनिस्टर के करीबी शख्स को, लॉ मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ के वकील थे, उनके करीबी शख्स को मुखालिफ वकील लगा दिया गया। तो ये सारे काम जो है ये हो रहे हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और बहुत सुप्रीम कोर्ट का जो पर महल और पर मौका ये रद्द अमल है। साबिक वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के असकुद नोटिस का खैर मकदम किया। अपनी ट्वीट में शेख रशीद ने लिखा इम्पोर्टेड हुकूमत अपने केसेस के खात्मे के लिए FIA, NAB और FNF पर दबाव डाल रही है जो शर्मनाक और अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो लेना तारीखी और सुनहरी फैसला है। अब इदारों और अदलिया पर अहम जिम्मेदारी है ताकि ब्यूरोक्रेसी दयानतदाराना और ईमानदाराना फैसले कर सके। कोई ताकत अवाम की खिदमत से नहीं रोक सकती, जब तक अल्लाह चाहेगा ओहदे पर बैठा रहूंगा। वजीर आला पंजाब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। इल्ज़ाम लगाया इमरान खान सियासत की आड़ में इंतशार फैला रहे हैं, वो फौज को तकसीम करने की साजिश में मसरूफ हैं, इदारों को नोटिस लेना चाहिए। हमजा शहबाज ने दावा किया कि डॉलर की कीमत 200 रुपये होने की वजह पिछली हुकूमत की पॉलिसीज हैं। कोई ताकत मुझे अपनी आवाम के दुख दर्द और उनके मसाइल हल करने से नहीं रोक सकती। अल्लाह जब तक चाहेगा मैं इस ओहदे पर बैठा रहूँगा। 1.5 माह हो गया अभी तक गवर्नर स्पीकर जो होता है वो एक्टिंग गवर्नर बनता है। हट गर्मी का ये आलम है, वोट नहीं लिया इन्होंने। 1.5 महीना होने के आया है, मेरे पास कोई काबीना नहीं है। ऐवान सदर में जो शख्स बैठा है आइन और कानून के साथ उस शख्स ने खिलवाड़ किया है, वो पाकिस्तान का मुजरिम है। ये सियासत नहीं कर रहा, सियासत की आड़ में इंतशार फैला रहा है। उसने आज कहा है मेरे लॉन्ग मार्च के अंदर फौज के खानदान भी होंगे। बड़ी संगीन बात है। फौज को तकसीम करने की कोई साजिश जो है उसको अपना जो है पीछे नहीं हट रहा। इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। इदारों को सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क की क्या डगर है। एहतसाब का नारा लगाया, अभी तक वो तोशा खाने की चोरी का जवाब नहीं दे सका। डॉलर आज 200 इसकी वजह से हुआ है। कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस वक्त तेल पे जो है वो सब्सिडी दे रहा है?
IMF के मुज़ाकरात तअत्तुर का शिकार हुए। हाथ बंधे भी हो, पाँव भी तुम बांध दो, कबीना भी ना हो, गवर्नर भी ना हो, पंजाब की आवाम के साथ हर हाल में खड़ा हूँ। उमर सरफराज चीमा ने गवर्नर पंजाब के ओहदे से हटाए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। विफाक के मई को ओहदे से बरतरफी के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देने और काबीना डिवीजन से नोटिफिकेशन जारी करवाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए तो उमर सरफराज चीमा की गवर्नर के ओहदे पर बहाली के लिए कानूनी कोशिश और ऐसे में ओहदे से बरतरफी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी और इसके अलावा 10 मई को विफाक का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए। अब आपको ये खबर दें कि लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत शुरू हो गई है। PTI के वकील इम्तियाज सिद्दीकी दलाइल देंगे। जस्टिस सदाकत अली खान 5 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत शुरू हो गई है। PTI के वकील इम्तियाज सिद्दीकी दलाइल देंगे जबकि जस्टिस सदाकत अली खान 5 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपना तिब्बी मुआयना कराने के लिए अमरीका रवाना हो गए। वज़ीर आला की और क्या मसरूफियात होंगी ये भी आपको बता देते हैं, लेकिन आपको ये बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपना तिब्बी मुआयना कराने के लिए अमरीका रवाना हुए हैं। मुराद अली शाह की अमरीका से वापसी भी आइंदा हफ्ते होगी। बात कर लेते हैं संजय साधवानी से। संजय बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह हालात के अमेरिका रवाना हो गए हैं। वज़ीर आला एक हफ्ता अमेरिका में क़याम करेंगे। अमेरिका में क़याम के दौरान वो अपनी फैमिली के मेंबरान, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी और अमेरिका में उनके भाई हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अमेरिका में अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे और साथ ही साथ अमेरिका में कुछ मुलाकातें होनी है, जिसका ऑफिशियली तौर पर तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि मुआयना करेंगे, तिब्बी मुआयना करेंगे और इसके अलावा कुछ अहम मुलाकातें भी करेंगे। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी आपका। वेलकम बैक। लॉन्ग मार्च से पहले ही बहुत कुछ बदल जाएगा। हुकूमत का आखिरी हफ्ता चल रहा है, ये 2-4 दिन की मेहमान है। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी से गुफ्तगू की। कहा राना सनाउल्लाह जितना मर्जी मूछों को ताव दें कुछ नहीं होगा। अवाम इलेक्शन चाहते हैं, नई हुकूमत देखना चाहते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? 63A के हवाले से जो तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने, ये वाज़ा हो गया है कि जो इमरान खान साहब भी कह रहे थे, हमारी जमात भी कह रही थी कि पार्टी के मैनिफेस्टो पर और उसकी टिकट पर जो इलेक्शन लड़ता है वो उस पार्टी के साथ वफादारी होनी चाहिए, उस पार्टी की लाइन पे चलना चाहिए। अपनी एक सोच कहती है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही ये जो हम हकीकी आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं, अवाम का समंदर आएगा इस्लामाबाद में। इलेक्शन के हवाले से आपका मुतालबा क्या है? देखिए, हमारा तो फिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा है और ये जो बैठा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि नून लीग की ज़ेली जमात बना हुआ है, इसको फिल फॉर हटाया जाए। इनको तो आइन में लिखा है कि 60 दिन के अंदर जब भी हुकूमत इन्हें कहे, ये पाबंद हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि हम 3 महीने में, हम 4 महीने तक हम तैयार नहीं हैं। MKM बलूचिस्तान अवामी पार्टी आपके सूबे से भी उनका ताल्लुक है, क्या अब भी उनसे राब्ते हैं? देखिए, हमारे तो राब्ते जब तक हमारे साथ थे हम तो असम्बली छोड़ के आ गए हैं, हम आवाम में हैं इस टाइम। MKM खुद कह रही है कि इलेक्शन ही फौरी इलेक्शन इस टाइम जो है हल है इस मुल्क का। आपने जो रूलिंग दी कहते हैं कि या वो उजरत में दी गई थी या फिर आपने तहरीरी तौर पे आपको दी गई थी, आपने सिर्फ पढ़ के सुनाया, ये असल वाकया क्या हुआ? मेरी ज़मीर की आवाज़ थी और मैंने जिस जज्बे के साथ कहा वो आवाम ने मेरा जज्बा भी देखा। उस दिन वहाँ पे ईवानों में बैठे हुए थे जो अपने आप को, जिन्होंने अचकने सिलाई हुई थी, उनका मुंह ऐसे ऐसे था, वो तस्वीरें आप देखें कि उनके होश उड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में को जो रूलिंग दी थी वो आर्टिकल 5 के हवाले से दी थी, उस पर नज़रसानी की अपील हमने की है। हुकूमत 1.5 साल चलेगी या मुख्तसर टाइम है? हुकूमत का मैं समझता हूँ ये आखिरी हफ्ता है, अभी 2-4 दिन की ये मेहमान है। 2-4 दिन की मेहमान है हुकूमत, और जो रूलिंग थी वो मेरे ज़मीर की आवाज़ थी और आइन का जो सही इस्तेमाल किया गया, ये कहना है कासिम खान सूरी का। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में बड़ा बोट के करीब औरंगी नाले का बंद टूट गया है और आपको ये बताएं कि बंद टूटने से जहांगीराबाद की नशेबी आबादी ज़ेरे आब आने का खदशा पैदा हो गया है। बात कर लेते हैं, यासिर हुसैन हमारे साथ हैं। यासिर, इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए औरंगी नाला है जो कि नाज़ाबाद बड़ा बोर्ड के करीब से गुजर रहा है, वहाँ पे बंद टूट चुका है और जो नाले का पानी है वो ज़ेरे आब आने का खतरा है और लोगों के घरों में पानी जो है वो भर जाने का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस वक्त नाले में अभी भी तरक्याती काम जारी है और ये कई अरसे से तरक्याती काम जो है वो चल रहा है। जबकि यहाँ के इलाके मकीन से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये जो तरक्याती काम है वो बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। तमाम तर जो मट्टी है वो उन्होंने नाले में डाल दी। नाले की जो गहराई है वो तकरीबन 15 से 20 फीट की गहराई है जो उन्होंने मट्टी डाल के इतना लेवल कर दिया है कि जो नाले का पानी है वो बिल्कुल उसकी बुनियाद जो उसकी यासिर, इस हवाले से आप तफसील दे रहे हैं, आपका शुक्रिया। हुंजा में शिशपर ग्लेशियर से पानी के खराज की वजह से मुनहदिम होने वाले हसनाबाद पुल की जगह मुतबादिल पुल की तामीर मुकम्मल हो गई है। सड़क अब ट्रैफिक के लिए खोली जाएगी, बता रहे हैं अजलाल हुसैन। जी, मैं इस वक्त हसनाबाद नाले में मौजूद हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं पाक फौज और FWO के हमारे जवानों ने गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर ये जो अभी नया ब्रिज जो लोहे का ब्रिज बनना था अभी बन चुका है। ये अभी आइंदा 12 घंटे के अंदर इसको खोल दिया जाएगा और हर किस्म के ट्रैफिक आमद-ओ-रफ्त जारी रखना है। इससे पहले अभी आप देख रहे हैं कि पुल का काम मुकम्मल हो चुका है और दोनों अतराफ के जो राबिता सड़कें हैं जो कैकेज को मिलाती है दोनों जानिब, वो अभी इस पे काम किया जा रहा है और इनका कहना है कि 12 घंटों के अंदर ये काम मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी। अजलाल हुसैन अपडेट कर रहे थे। शाहीन, आपने मॉडलिंग कब स्टार्ट की? फास्ट बॉलर ने तस्वीर शेयर की तो शादाब खान ने सवाल पूछ लिया। शाहीन शाह अफरीदी ने ट्विटर पर स्टाइलिश फोटो शेयर की तो शादाब खान ने सवाल पूछा, मॉडलिंग कब स्टार्ट कर दी? शाहीन अफरीदी ने जवाब दिया, भाई आपसे सीखने की कोशिश कर रहा हूं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।